I'm Mamata Balachandra and you're watching the Rural Report. Now, the idea with this show is to create a space to talk about everything that's going on in rural parts of the country because the focus, and rightly so, is shifting from big cities to rural areas. COVID has ravaged several parts of the country in rural areas, and the aim is to just talk about everything that's going on away from the big metros. Today, I'm going to be talking about Uttar Pradesh. On the Rural Report, we focus on rural areas of Uttar Pradesh. And for viewers who are watching right now, there's a bit of a disclaimer. The information that you will hear throughout the show could be distressing. So if you want to opt out of this conversation, you can do so now. I will begin with the numbers. Uttar Pradesh on Wednesday has recorded 7,336 cases, which has been the lowest since April 30th, and 282 more deaths have been recorded, and this is as of Wednesday. But reports and many ground reports across Uttar Pradesh show a slightly different picture. Over the last 2 weeks, we've seen that there have been reports which talk about how UP's rural healthcare is a mess right now. In fact, a report by The Print has said that Meerut is one of the worst affected districts of UP. And one of the major problems, according to this report, is that a lot of villagers are extremely afraid of testing and that healthcare system is collapsing. In fact, the problem is so bad that the Allahabad High Court on Monday has said that the entire medical system in Uttar Pradesh and in smaller cities of Uttar Pradesh is Ram Bharose. To give you a fair idea of what else is happening, there were also reports that said that over 1,600 teachers in UP have died, and this is the teacher union's claim, where they've said that more than 1,600 teachers have died because of COVID after contracting COVID while on poll duty, and we're talking about UP Panchayats. The government has refuted this claim in the meantime, saying that only 3 people have died so far. Not just that, very distressing news that's come out over the last 1 week out of UP is that scores of bodies have been found floating in UP and Bihar. In Bihar's Buxar district, 71 corpses washed up Mahadevgarh of the Ganga River, and at least a dozen corpses washed up Hamirpur district in UP as well. And now we're talking about Prayagraj district as well. Now, UP and Bihar governments so far have blamed each other, and the chief minister has ordered patrolling over rivers as well. But this is what has happened as of Wednesday. After you've heard all of the information, the UP government on Wednesday has claimed that 64% of its villages are COVID-free. The government has claimed that the committees that they've set up are testing and tracing as much as possible, and that its members have visited 79,512 villages until now. So these are the questions that we're going to ask today. One, are these numbers accurate at all? Because the numbers show that there's been a slight dip in cases, but still we see and hear of ground reports which talk otherwise. What's really going on in these villages? And more importantly, how bad has COVID hit rural UP, and what should we be focusing at this point? To talk about all of this, I have with me Dinesh Mishra, who's a journalist from UP, joining us from Lucknow at this point. Mr. Mishra has done a lot of work on ground, so he'll be able to give us an idea of what really is happening in these villages. Mr. Mishra, thank you so much for joining us and giving us your time. My first question is, the UP government as of now has said that 64% of its villages are COVID-free. Is that number accurate at all? What information are you picking up from ground? How bad is the situation on ground? अमिता, गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर्स देती है या जो भी आपको डेटा बताती है, नंबर्स बताती है, वो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए बताया जाता है, जबकि ग्राउंड पर आप जाकर के देखेंगे और रियलिटी जो है ना, वो इससे कहीं भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। स्थिति यहाँ पर ये है कि अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा या देखा भी होगा चैनल्स पे कि गंगा के किनारे, यमुना के किनारे लाशों को जलाया जा रहा है, या कई जगह पे ऐसी स्थितियां हैं कि लाशें ऐसे ही फेंक दी गई हैं, बालू में दबा दी गई हैं। क्यों? क्योंकि गंगा के किनारे जो भी विलेजर्स रहते हैं उनके पास इस समय खाने तक को पैसे नहीं है, खाना नहीं है, और फिर वो लकड़ियां खरीद करके कब तक लाशों का अंतिम संस्कार करेंगे। एक एक गांव की अगर हम बात करें
तो लखनऊ में अगर हम सिर्फ लखनऊ की बात करें, लखनऊ आउटर की बात करते हैं, तो इस समय स्थिति यह है कि शमशान घाट तक लोग ले जाने के लिए 4 या 5 लोग भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना के डर से लोग किसी को टच भी नहीं करना चाहते हैं। इवन अपनों की जो बातें हैं, तो वो कुछ गरीब तो इतने मजबूर हैं, वो सिर्फ 2 लोग लेकर के जा रहे हैं और उनको गंगा में, नदी में, या फिर जो भी आसपास की नदियां हैं उनको फेंक दे रहे हैं। इससे सबसे बड़ी समस्या महामारी की फैल रही है। अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा 64% तक हम कवर अप कर रहे हैं ताकि गाँव में डेटा कोरोना को रोका जा सके या नहीं फैले, तो वो गवर्नमेंट तो कर ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? इनके पास ये डेटा फिलहाल मुझे लगता है एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो इनको करना था ये तो वो तब कर नहीं पाए। यूपी पंचायत चुनाव अभी हाल ही में क्लियर हुए हैं, और यूपी पंचायत चुनाव के ठीक पहले से ही कोरोना यहाँ पर फर्स्ट फेज इतना भयानक हो चुका था, उसके बावजूद भी यहाँ पर पंचायत चुनाव कराए गए। अब जो पंचायत चुनाव हुए हैं तो वो गांव की भागीदारी होती है, गांवों से शहर तक का टच होता है। इसकी वजह से कोरोना इतना ज्यादा गांवों तक फैल चुका है कि अब आप डेटा बता रहे हैं कि हम 64% कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि 100% गांवों में पंचायत चुनाव हुए हैं। और 100% गांव में अगर पंचायत चुनाव हुए हैं, दैट मीन्स कि 90%, मिनिमम 90% कोरोना स्प्रेड हो चुका है ऑलरेडी। और हमारे पास डेटा गवर्नमेंट बता रही है 64% पर हम काम कर रहे हैं। तो मतलब 64 ये बाकी का जो बचा हुआ 36% का है, ये तो पहले से ये छोड़ दे रहे हैं, ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं उस पर, ये 64 पर ही काम कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, मैं आपको बताऊं, सीएचसी, पीएचसी या ब्लॉक लेवल पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, आप देखेंगे कि ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल्स पे 90% हॉस्पिटल आपको गांवों में ऐसे मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के हर जिले की बात मैं कर रहा हूं, 90%, जहां पर पिछले 5 साल 6 सालों से ताला बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि वो हॉस्पिटल तो बन गए हैं, लेकिन वहां पे इक्विपमेंट नहीं है। और इक्विपमेंट ना होने का सबसे बड़ा रीजन कि वहां पर मैनेजमेंट ही नहीं है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो भी डेटा बताएगी, नो डाउट वो पूरी तरह से, मुझे नहीं लगता है कि वो सही या एक्यूरेट डेटा होगा। तो आप ये बता रहे हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ मैन पावर एंड दैट इज अ ह्यूज चैलेंज इन ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको बता दूं, एक लखनऊ राजधानी है, लखनऊ का मैं डेटा बता दूं, लखनऊ के जो पॉश इलाके हैं जैसे कैसरबाग है, अलीगंज है, महानगर है, ये हार्ट ऑफ द सिटी है। इन पर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के बने हुए हैं, इन पर ही 4 से 5 डॉक्टर्स की कमियां हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले 1 महीने में जो यहाँ के सीडीओ हैं प्रभाष कुमार जी, वो लगातार वहां विजिट करते हैं, वहां से बात करते हैं, कहते हैं 100% डेटा फीडिंग क्यों नहीं हो रही है। तो वहां के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, वो इनको खुद बता रहा है, रिटेन में बता रहा है कि सर हमारे पास 2 डॉक्टर्स की कमी है, 3 मेडिकल स्टाफ की कमी है, 2 पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। और वो इस रिपोर्ट को शाम को कंपाइल करके लगातार मीडिया में दे रहे हैं। आप समझिए कि जब लोकल लेवल के ऑफिसर्स ऐसा कंपाइलिंग डेटा दे रहे हैं कि भाई हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है, तो गवर्नमेंट जो अपर लेवल गवर्नमेंट है या मैनेजमेंट है, वो किस बेस पे कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ परफेक्ट है। But I want to talk about a report, and we'll put up this report as well on the screen. A report by the Times of India has said that 75% COVID beds are actually vacant in 20 hospitals in Prayagraj. Yeah. Why is that the case, and why is the data showing otherwise? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में ये मुद्दा उठा था जिसकी आप बात कर रही हैं, टाइम्स ने आपको दिया है कि 75% जो टाइम्स ने दिया है डेटा की हॉस्पिटल्स वैकेंट हैं और प्रयागराज में वैकेंट है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर डॉक्टर ही नहीं है। आप ये बताइए, जब पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, मेडिकल स्टाफ नहीं होगा, डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, तो आप बेड क्या 75%, 100% आप खाली रखिए। आपको एडमिट करने वाला वहां डॉक्टर होना चाहिए ना, आपके ट्रीटमेंट के लिए वहां पर डॉक्टर होना चाहिए, वो तो है नहीं। अगर बेड खाली भी हैं तो उनका क्या करेंगे आप? ऑक्सीजन की कमी है, लगातार ऑक्सीजन की कमी है। अगर बेड खाली है तो आप उसका क्या इस्तेमाल करेंगे? So what are patients doing at this point? Because a couple of weeks ago, the state government had also said that hospitals cannot turn away COVID patients. गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को वापस नहीं कर सकता है। That's true. I agreed with you. But the main situation is that
पेशेंट वहां पर क्या करेगा? वो साफ साफ कह रहा है, वहां पर जो जूनियर स्टाफ है वो कहता है सर आप लाइए पेशेंट को लिटा दीजिए, लेकिन आप कल को बोलेंगे कि ये कर दो वो कर दो, मैं कहां से करूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ अगर बेड चाहिए तो आइए आप लेट जाइए। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि डॉक्टर्स तो होने चाहिए ना एटलीस्ट। आप आज पेशेंट घर से आता है, कहता है मुझे बहुत समस्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, उसका कोरोना टेस्ट अगर हॉस्पिटल में आज कराया जाएगा तो रिपोर्ट आएगी 48 आवर्स के बाद, या मिनिमम अगर जल्दी भी करेंगे पीजीआई में कराते हैं तो भी 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आ रही है। तो 24 घंटे तक क्या किया जाएगा उसका, मुझे बताइए। सिचुएशन ये है यहाँ पर ना। Mr. Mishra, also tell me from your conversations with people on ground, is there a fear amongst locals in terms of getting themselves tested, or is there enough testing happening at all? टेस्टिंग की आप बात करेंगे तो पिछले हफ्ते ही लखनऊ के, अभी तक लखनऊ में 3000 टेस्ट रोज हो रहे थे, हर रोज हो रहे थे टेस्ट 3000। अभी लखनऊ में पिछले हफ्ते ही कुछ एक शायद अनऑफिशियली बातचीत में कहा गया कि भाई हमारे पास 1700 टेस्ट करने के ऑर्डर्स आए हैं, हम इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1700 टेस्ट हम करेंगे तो 1700 को हम ट्रीट कर सकते हैं, जबकि 3000 लोगों के अगर हम टेस्ट करते हैं तो 3000 लोगों का हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अब हमें उतना ही टेस्ट करना है जितनों को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकती हैं कि स्थिति क्या हो रही है। टेस्ट को कहा जा रहा है कि आप टेस्टिंग कम कीजिए ताकि हम जितने हम ट्रीट कर पाएंगे पेशेंट्स को, जितने हम पेशेंट्स को एडमिट कर पाएंगे उतनी ही टेस्टिंग कीजिए। तो बाकी के पेशेंट्स का क्या होगा? पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं टेस्ट के लिए, उनको टाइम दिया जा रहा है, आप कल आइए, आप उनको पर्ची लिख के दे रहे हैं, आप 2 दिन के बाद आइए। उस दौरान उसको क्या हो गया? सिम्टम्स तो है उसको, तभी ना वो हॉस्पिटल तक आया है। And what information are you picking up from people in these villages, especially at the riverbanks, where they've seen a lot of corpses or dead bodies float up? And that's happened in many parts of Uttar Pradesh and Bihar as well. The governments have blamed each other and they have said that patrolling will happen near riverbanks. Is that happening at all? अमिता, सरकार को पिछले 6 दिनों में लगभग गंगा, यमुना और जो भी लगभग 11 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश में, 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गंगा और यमुना के किनारे रहते हैं, उनके गांव रहते हैं, वहां पर लगभग अब तक में 650 से 700 लाशें मिल चुकी हैं, जिनका ऑफिशियल डेटा गवर्नमेंट कहती है 150, 200, 250, 300 है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी लाशें मिल रही हैं उनको वो लोग कहीं पे भी मतलब अब क्या कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, बलिया में कल की घटना है, परसों रात की, बलिया में नदी के किनारे जो लाशें मिली हैं उनको पुलिस वालों ने टायर जला करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आप समझिए कि अगर टायर से किसी लाश का अंतिम संस्कार वहां की पुलिस, लोकल पुलिस कर रही है तो कितनी स्थिति गंभीर है, भयानक होगी, आप समझ सकती हैं कि टायर से तो कम से कम किसी का अंतिम संस्कार नहीं होगा, पेट्रोल डाल करके टायर जला दिया। Is there fear amongst locals thinking or fearing COVID as well among locals who are near these riverbanks? देखिए, अब मैं बता दूं क्या है कि अब गांव में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला तो ये है कि उनके पास में जो लोकल उनका कहते हैं नहीं, झोला छाप डॉक्टर जिसे कहते हैं, तो आज के टाइम पर झोला छाप डॉक्टर जिसे गवर्नमेंट बैन कर रही थी, फिलहाल वो मसीहा बन चुके हैं, क्योंकि हल्की फुल्की सर्दी खांसी जुकाम है या जो भी कोविड को लेकर के वो सिम्टम्स उनको लग रहा है, जो ग्रामीण के कहते हैं नहीं, छोटे लोकल डॉक्टर्स होते हैं, इवन वो ऑफिशियली डॉक्टर्स नहीं डिक्लेयर्ड हैं, फिर भी वो बेचारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देख करके, दवाओं को रख करके, जिनको भी लगता है कि हाँ वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो उनको एक तरह से हल्की फुल्की मेडिसिन दे रहे हैं ताकि वो घर पे ही रह करके रिलीफ हो जाए उनको। इवन उत्तर प्रदेश में शहर को छोड़ दीजिए, आप गांव में भी अब स्थिति ये है कि लोग इतना ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, इतना डर चुके हैं कि वो खुद से एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और कहीं भी मार्केट में ऐसे ओपन लेवल नहीं चल रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़े राहत और बचाव की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो दिखा दिया है कि उसके पास कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बता चुकी है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको कंपैरिजन करूं, पिछले लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने जगह जगह खाने की व्यवस्था की थी, जबकि पिछले लॉकडाउन में लोगों के पास में पैसा भी था, खाने की चीजें भी थी और इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं था कोरोना का, या इतना डर नहीं था। इस लॉकडाउन में मैं बता दूं कि सामाजिक संगठन जो पिछली बार निकल रहे थे उसके 50% भी नहीं निकले हैं, क्योंकि जो सोशल वर्कर्स
मार्केट में आकर लोगों को खाना दे रहे थे, अब उनकी स्थिति और भी खराब हो गई है, क्योंकि कई तो खुद अपने आप को बचाने के लिए नहीं निकल रहे हैं, और कई जगह पे अब गवर्नमेंट भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट खाने पीने की व्यवस्था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि क्या होगा। पिछले लॉकडाउन से लोग उबर ही नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी, थोड़ा बहुत सुधार आया था, ये अगला लॉकडाउन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पंचायत चुनाव के दिन तक, जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन तक कहते रहे कि हम कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अब आज स्थिति यह है कि पिछले 1 महीने से लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है। अब उस पर भी गंभीर ये हो गया है कि पुलिस, जो भी लोग निकल रहे हैं बाहर, अगर कोई दवा लेने भी निकल रहा है, कुछ काम से भी निकल रहा है या टेलीफोनिक सर्विस, तो पुलिस उनका चालान काट रही है। अब आप समझ सकती हैं कि ये एक तरह से लोगों के साथ में कितना गलत हो रहा है। या तो आप उनके लिए कुछ व्यवस्था करिए। Report by National Herald at the end of April, where it said that doctors are literally pleading patients to not go to the hospitals, to asking relatives, in fact, to not send patients to hospitals because they're extremely understaffed. You're saying that that situation has only gotten worse. I also want to ask you, there was this report which said that 1,600 teachers who have like succumbed due to COVID because of cold duty, and that number is likely to go up. Is that the case? Will that number go up? Because the government has refuted this claim. They've said that the toll is not 1,600. अमिता, मैं आपको बता दूं कि जिसकी बात कर रही है ये तो बहुत बड़ा मजाक कर रही है सरकार। डेटा को छुपाना तो अच्छी बात है कि ठीक है, सरकार अपने आप को बचाने के लिए डेटा छुपाती है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन इतना भी सरकार को नहीं छुपाना चाहिए कि वो अपने ही लोगों को, अपने ही ऑफिसर्स को इनकार कर दे कि नहीं नहीं, इनका डेथ हुआ है हमारे कोरोना की वजह से हुआ है, या फिर हमारे लैक ऑफ इक्विपमेंट्स की वजह से हुआ है। सच्चाई ये है कि सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 टीचर्स की मौत कोरोना से हुई है, जबकि खुद टीचर्स के जो एसोसिएशन है, टीचर्स के जो संगठन है, वो कह रहे हैं कि भाई 1000 से 1600 से 1500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, और आप 3 टीचर्स का नाम दे रहे हैं। इवन हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी इस समय कोरोना से, लगभग 5 से 6 जज ऐसे हैं जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। सरकार पूरी तरह से डेटा को छुपाने में लगी है ताकि उनके ऊपर कोई So you're seeing the numbers that are being reported right now, whether it is the number of people who are dying, whether it's number of cases which are going up, everything is underreported, that number is far worse. And how much worse is it likely going to get over the next couple of weeks? अभी तक ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन हम और आप सभी लोग यही चाहते हैं कि कोरोना से हर कोई बचा रहे और जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। सरकार को क्या है कि अब अपकमिंग, अब से कुछ ही महीनों बाद, लगभग 8 से 9 महीने बाद इलेक्शंस की स्टार्ट होने हैं। 2022 के यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सरकार अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके चल रही है कि हमें विधानसभा चुनाव में भी जाना है, पब्लिक के बीच में जाना है, तो हम कुछ भी करके ऐसा डेटा मार्केट में करें और इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश करें कि उन चुनावों में हमें कोई फर्क नहीं पड़े। Okay, so I'm going to go over a couple of things that you basically said, and we'll put up the National Herald article by the end of April where it said that doctors are literally pleading relatives to not send patients to hospitals because they're severely understaffed. And Dinesh Mishra, who's joining us from Lucknow, who's a senior journalist, telling us that that problem has gotten worse, that there is lack of manpower, that the numbers right now that we're looking at, over 7,000 odd cases that were reported on Wednesday, and the number of deaths, all of it is more than what meets the eye at this point, is what journalists are telling us on ground, that the numbers could be far worse. Additionally, the 64% claim that the government has made as of Wednesday, where they've said that 64% villages are COVID-free, that could also be false. Is what journalists on ground who've been reporting on ground say, that is not what is the case in rural villages, that it's far worse. And on the rural report, we're going to continue to bring up stories like this. We're going to continue to take up rural areas from across the country. Do give us feedback on what you think. Also tell us what we should be talking about, and we'll make sure that we pick that up here on the rural report. Thank you so much for watching.